पूरा ये लगता है कि अखंडा टू के इतने अच्छे रिव्यूज़ आए थे दोस्तों सीबीएफसी में, फिर भी वो अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन हुई। तो मैं तुमको बता देता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है वो मैं बता रहा, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है अब, जो वो क्या हुआ है कब आएगा। लेकिन 4-5 रिव्यूज़ थे यार जहाँ पे अच्छे रिव्यूज़ आए थे। मतलब मुझे उस बात का ज़्यादा बुरा लगा कि अच्छे रिव्यूज़ के बावजूद भी, अब ये फाइनेंशियल इशू था, ऐसा नहीं है कि अच्छे रिव्यूज़ के बावजूद कोई फिल्म बैन हुई है। वो उनका मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का इशू है। वो मसला कहाँ तक पहुँचा है बताऊँ मैं आपको। अखंडा टू मद्रास HC हाई कोर्ट स्टेज द रिलीज ऑफ नंदामुरी बालकृष्णाज फैंटासी एक्शन ड्रामा NB Kids। मैं एक बात बता देता हूँ आपको जो कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो उस दिन इन्होंने बोला था ना 99% हमारा केस कंप्लीट हुआ है, 99% हम केस जीतने वाले, उस दिन मैंने क्या बोला था याद है? ये प्रोड्यूसर झूठ बोल रहा है तुम लोगों से। कोई ये बोल रहे थे ना हम 2-3 दिन में बता देंगे रिलीज डेट क्या है, आया क्या कुछ? उल्टा यहाँ पे ये लोग केस फंसे। केस में क्या हुआ देख लो। द मद्रास हाई कोर्ट हैज स्टॉप द रिलीज ऑफ Nandamuri Balkrishna's Akhanda 2 due to dispute between the production house and another company, Eros International Media Limited. Justice S.M. Subramaniam and C. Kumarappan decided to let Eros original side appeal challenge the single judge's October 30, 2025 order, which had declined the grant an interim injunction on film's theatrical release. They set aside the decision and remanded the matter to single judge for fresh consideration. The bench directed that the film should not be released until the matter before the court gets listed for another hearing in front of another single judge who would take the call on interim injunction. Senior Colonel Senior Counsel P.S. Raman, assisted by Vaibhav, told the division bench that Eros had first approached the single judge under Section 9 of Conciliation Act 1996 asking for interim injunction. Eros explained that it had a long pending material dispute with 14 Reels Entertainment Private Limited. This dispute resulted in an arbitral award on 23rd July 2019 ordering 14 Reels to pay Eros 11.22 crore as principal amount along with 14% interest from the date of money become due. 14 Reels challenges the arbitral award in High Court, but single judge dismissed their petition. That dismissal was later upheld by both division bench and Supreme Court in 2021. Despite this, Eros issued a notice in 2025 asking complaints with award. It received no response. अब क्या होगा आगे? According to Eros, 14 Reels tried to sidestep the award by shifting its operations to new entity 14 Reels Plus LLP, run by a family member of original company's directors. Eros alleged that the new entity was being used to avoid payment and start work on Akhanda 2. The single judge, however, refused to grant interim injunction on movie's release. He held the Section 9 application should not be routinely used when the award holder had option of filing an execution petition under Section 36 of Act. The division bench disagreed. It is said that the Section 9 is independent remedy and can be used by an award holder to seek interim protection. The bench therefore sent the matter back to single judge for fresh look at merits. Meanwhile, NBK was last seen in Daku Maharaj. अब आपको ये आप मैं बता देता हूँ, ये जो डिस्प्यूट है ना, ये जो झमेला है ना, ये वीडियो को शेयर कर देना। ये जो पूरा मैटर ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये बस झूठ मूठ का अखंडा 2 रिव्यू रिलीज डेट ये बताते रहेंगे कुछ लोग ऐसे ही व्यूज़ के लिए। बट ये जो मेन बात है, फैक्ट है, वो कोई नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि जब तक। तो दोस्तों एक बात याद रखना, ये जो मूवी रिलीज़ है ये 26 में गई है। ये जो कितना भी तुम्हारे, मैं तुमको बोला ना, ये तुम्हारे जो मेकर्स है वो तुमको बेवकूफ़ बना रहे। झूठ मूठ का चल रहा है इन लोगों का कि सब सही हो जाएगा, हम जल्दी ही रिलीज़ करवाएंगे। क्या हुआ भाई? मैं उसी दिन तुमको बोला था, ये लोग आप लोगों से एक ऐसे ही मजाक में, मतलब उस दिन जब एक अपडेट आया था इनकी तरफ से 99% हम केस जीते, इसमें ही पता चलता है कि वो कितने श्योर है। जब कोई भी बंदा 99% की बातें करता है ना भाई,
1% का भी काम नहीं किया होता है, लेकिन बातें 99 की होती है। अगर वो इतने श्योर होते वो डायरेक्ट बोलते हम केस जीते हैं, इस केस में दम नहीं है, हम रिलीज़ कर रहे हैं, सी यू सून। इन्होंने क्या फैंस को बोला, 99% द केस इन आवर हैंड्स, वहीं पे ख़त्म हुई थी बात। क्योंकि भाई जब इस टाइप की कोई बातें आती है ना, सब कुछ झूठ होता है। तो भाई अब ये फिल्म का रिलीज़ 2026 बताया जा रहा है। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ये डिस्प्यूट कब ख़त्म, देखो भाई ये लोग बड़े लोग हैं, करोड़ों की बातें इनके लिए उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है। हालांकि अब ये ईगो क्लैश भी है, तो ये फिल्म जाएगी जनवरी से भी आगे। क्योंकि जो ये बेंच सेटलमेंट वगैरह जो हो रहा है ना, वो पहले जो लग रहा था मुझे संक्रांति तक ये फिल्म का मैटर क्लोज हो सकता है, लेकिन ये जो मैटर रोज़ कोई ना कोई जज कोई ना कोई कोर्ट में जा रहा है, ये नहीं ख़त्म होने वाला भाई 1-2 महीना। और इसमें तो भाई वो जज और लॉयर्स बहुत मस्त पैसा कमा लेंगे भाई साहब। केस की डेट आगे जाती रहेगी। अब तो अखंडा 2 को लोग बोल रहे रिलीज़ पे भी डाउट है। नहीं 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 भाई, इतनी बड़ी फिल्म के रिलीज़ डेट पे कभी डाउट नहीं होता है। ये मैटर लेकिन कोर्ट में इतना घसीटेंगे ये लोग, चाहे तुम्हारे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चाहे वो मेकर्स हो। अब नहीं होने वाला भाई साहब ये सब ठीक। ये मुझे जो लगा था कि जनवरी में तो अखंडा 2 रिलीज़ हो रही है, ये कंफर्म है। अब ये मान के चलो कि ये मार्च तक जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली जनवरी तक तो एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। इस बेंच के पास गई डेट, उस बेंच के पास गई, नहीं भाई ये अब मान के चलो कि 1 महीना तो इनका ये चलता रहेगा। हाँ, ये जो पैसों का जो मामला है, मसला है, अगर ये पैसों का झमेला जो भी है, पैसा लेन देन बाकी है, जो भी होना है, अगर ये हो जाता है तो फिल्म का रिलीज़ डेट बहुत जल्दी चांस है। पर यही जो एक 11-12 करोड़ वाला अमाउंट है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा है कुछ इनके, तो और भी कुछ 2019 से चक्कर चल रहा है कुछ ना कुछ। तो ये जो सारा मसला सॉर्ट होने में मुझे तो लगता है 1-2 महीना जाएंगे। आप मान के चलो फिर कि फरवरी या मार्च में शायद, बोल रहा हूँ मैं, ये रिलीज़ हो। और जो लोग ये बोल रहे कि क्या अखंडा 2 डायरेक्ट OTT पे आएगी अगर ये झमेला चलता रहा, ये बहुत आगे की बात है। ये बहुत आगे, बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें होती है कि कभी कभी ऐसी बड़ी फिल्म बाद में जस्ट बिकॉज ऑफ डिलेज उस वजह से शायद आ सकती है OTT पे। लेकिन जो अखंडा 2 की तैयारी की गई है, मेकर्स बहुत ज़्यादा ही लॉस में जाएंगे अगर ये डायरेक्ट OTT पे डालेंगे तो। क्योंकि भाई NBK की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है साउथ में, अपने बजट से ज़्यादा ये फिल्म वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर लेगी। रीजनल फिल्मों के लिए अपना वर्ल्ड वाइड बजट से ज़्यादा अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी आ जाए तो फिल्म प्रॉफिट में निकल जाती है। तो आई डोंट थिंक कि अगर NBK नहीं होते, कोई दूसरा एक्टर होता छोटा मोटा भाई, तो शायद ये कुछ सोचते। बट इतनी उनके लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म अगर ये बनी है तो भाई ये थिएटर्स में ही आएगी। इसीलिए ये डिले हो रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा यार। अभी देखते हैं कब आएगी। मुझे लगता तो नहीं है भाई कि अब जनवरी इसका डेट है, और जनवरी में शायद बहुत सी फिल्में आ रही भाई, वो थालापति की भी आ रही है, प्रभास की आ रही है, राजा साहब, तो इवन बॉर्डर 2 आ रही है। आज जनवरी तो फुल है भाई यूट्यूबर्स के लिए, चांदी बाय द वे। पर क्या ही करे भाई, अब जो होगा सो होगा भाई। इवन फरवरी में वो शाहिद कपूर की रोमियो आ रही है भाई, तृप्ति के साथ है ना, वो कौन है उसमें एक्टर आए, मतलब मैं भूल गया आई थिंक। और देखते हैं भाई, अब अपडेट तो देता रहूँगा मैं, और क्या होगा क्या नहीं भाई वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी तो भाई अखंडा 2 का आई थिंक दूर दूर तक कोई भाई निशान नहीं है। जनवरी तो भूल ही जाओ।